Assalamu alaikum dear students and welcome to online lecture at Imperial Science College. As you know, previously we were discussing chapter number 2 clearing in the sky. हमने इसकी जो translation है वो हम complete कर चुके हैं and today we are going to discuss its exercise and we will move towards exercise. First of all, choose the correct answer. First question. The first question is the old man wanted to show his son. बूढ़ा आदमी जो है अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता था? His farm, his land, a patch of clearing or river. A patch of clearing. The option C is correct one. कि वो उसको patch of clearing जो है वहाँ पर दिखाना चाहता था. Question number 2. The day was hot, गर्म था, pleasant, rainy or humid. हॉट डे था, वो बहुत गर्मी थी, जैसे हमने पढ़ा कि उसमें 97 इन द शेड. हाउ मेनी ईयर्स लॉन्ग डिड द डॉक्टर्स एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट. कितने साल पहले डॉक्टरों से कहा था कि आप आराम करें? 10 years, 20 years, 30 years और 40 years. Of course 40 years. It's option D1. D वाला जो ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट वन. हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन के जो बूढ़ा आदमी उसके कितने बच्चे थे? ऑप्शन है 3, 4, 5 and 7. यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट वन. 5. वाई डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ. ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा आदमी जो है, उसने अपने पॉकेट नाइफ के साथ क्या चीज़ काटी? अ सैपलिंग, अ फ्लावर, अ विस्प ऑफ अल्फा अल्फा, अ टोमेटो. अ विस्प ऑफ अल्फा अल्फा. Option C is correct one. And question number 6. In how many years did the old man improve the land? कितने सालों में जो बूढ़ा आदमी था उसने वो जो ज़मीन थी उसने उसको यानी कि बेहतर किया, इम्प्रूव किया? 20 और 30, 40 और 60. B option B is correct one. 30 years. 30 साल उसको लगे थे. Question number 7. Why did the old man hunt for the skulls? जो बूढ़ा आदमी था वो जो यानी कि गिलहरियों का वो यानी कि शिकार क्यों किया करता था? To sell, to kill, to cook for meal, to pet. Definitely to cook for meal, के उनको पकाने के लिए, खाने के लिए. The option C is the correct one. Question number 8. What type of special tree was found by the old man? कि वो जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, उसने किस किस्म का ख़ास जो उसको दरख्त था वो उसको मिला था? It was cherry, apple, orange और coffee tree. D option is correct one. Coffee tree. ये कॉफ़ी का दरख्त जो है वो बूढ़े आदमी ने वहाँ पर दरियाफ्त किया था. Option number 9. Question number 9. The clearing on the top was not more than. वो उसको यानी कि रकबे के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कितनी थी? ज़मीन जो है 3 acres, 4 acres, 2 acres और 3/4 of an acre. D option is correct one. 3/4 of an acre. Question number 10. The land was fenced by. ये जो ज़मीन थी इसको किस यानी कि फेंस बाय किसके ज़रिए यानी कि इसको फेंस यानी कि बाड़ लगाई गई थी? The son, the mother, the old man, the brother of the old man. The brother of the old man definitely वो नहीं था. The option C is correct one. कि old man जो है उसने खुद उसके गिर्द बाड़ लगाई, जैसे उसने कहा था कि I fenced it, मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई. Now dear students, we will move towards the question number 3. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Question number 1. Why didn't the old man follow the advice of the doctors? कि जो ओल्ड मैन है उसने डॉक्टर्स की एडवाइस जो है नसीहत को क्यों नहीं माना? The old man didn't follow the advice of the doctors because he had a strong faith in himself and he wanted to live, and because he has to raise a family of 5 children and he wanted to show that he has a strong willpower and he wanted to live with this strong willpower. That was the reason that he wanted to live. इसी वजह से उसने जो डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उसने उसको नहीं माना. And question number 2. What had the doctors told the old man?
जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ओल्ड मैन को, उस बूढ़े आदमी को क्या बताया था? द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन दैट ही वुड डाई सोन and he should take rest and he should not work and उसको काम भी नहीं करना चाहिए थे. he should not work and not walk, ना उसको चलना चाहिए ना उसको काम करना चाहिए, but he should take rest and enjoy the days of his life he had left with him and be with his family. कि वो अपनी जो है ख़ानदान के साथ जो उसके पास वक्त बचा है वो उसको गुजारे. डॉक्टर्स ने उसे ये बताया था. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन? बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ लेकर गया था? द ओल्ड मैन टुक हिज सन टू द माउंटेन टॉप टू शो हिम अ पैच ऑफ क्लियरिंग विच ही हैड क्लियर्ड. कि जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बेटे को पहाड़ की चोटी पर लेकर गया, वो उसको वो कितना ज़मीन, वो कितना अराज़ी उसको दिखाना चाहता था जो उसने वहाँ पर साफ़ किया था. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू गॉट इट. And question number 4 we have here, had the son ever been there before? कि क्या जो बूढ़े आदमी का जो बेटा था वो उससे पहले कभी वहाँ पर गया था? Of course, yes. The son had been there many times with the exception of last 3 years. पिछले 3 सालों के सिवाय पिछले 3 सालों के वो वहाँ पर कई दफ़ा वहाँ पर जा चुका था. Question number 5 we have here, what were the names of the vegetables the old man grew on his farm? ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने कौन कौन सी सब्जियां अपने फार्म पर वहाँ पर उगाई हुई थी? हमारे पास जो चैप्टर में जो नेम मेंशन हैं वो हम बताएंगे. द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन द फार्म आर फॉलोइंग. वो कौन कौन से हैं? दे आर टोमेटोज, पोटैटोज एंड यम्स. Question number 6, why did the old man take the steep path? बूढ़े आदमी जो था उसने वो जो ढलवानी रास्ता था उसने क्यों इख्तियार किया? The old man took the steep path to check his physical fitness because he wanted to check his fitness level. वो देखना चाहता था कि वो कितना यानी कि फिट है. and he also wanted to वो ये भी चाहता था कि जो डॉक्टर ने उसे बताया उनको यानी कि गलत साबित करना चाहता था जो डॉक्टर्स हैं उनको भी. इसलिए उसने वो ज़्यादा ढलवानी जो रास्ता है उसने अख्तियार किया. ठीक है, कि जैसे हम अभी पढ़ा है कि वो अपनी सेहत का जो लेवल है उसको चेक करना चाहता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम ही मेक यानी कि डिफ़िकल्ट पाथ उसने यानी कि वो बनाया. And he also wanted to show his physical fitness and his strong willpower to live and his spirit of life. वो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वो ये शो कराना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 7, why did the son at the age of 6 cry? कि जो उसका ओल्ड मैन का जो बूढ़े आदमी का जो बच्चा होता है, बेटा होता है, वो जब उसकी उम्र 6 साल होती है, 6 वर्ष का जब वो होता है तो वो क्यों यानी कि रोता है? The son at the age of 6 cried because he lost his wooden plow in the furrow. And he cried until his father made him a new one. यानी कि वो उसने हमें बताया जैसने कि उसका जो हल था छोटा अठोए वो यानी कि वहाँ पर कैरी में खो गया था, तो वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया और उस वक्त तक रोता रहा जब तक उसके बाप ने उसको एक नया हल बनाकर नहीं दिया. और उसने हमें ये बताया कि उसका जो दूसरा हाल था उसको वो कभी इतना प्यारा नहीं लगा जितना कि उसको पहले वाला जो उसका हाल था उसको प्यारा लगता था. क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव गॉट हियर, what were the feelings of the old man at the age of 70? Even at the age of 70 the old man was still healthy and energetic. He was full of life and energy. And he wanted to cultivate the land, he wanted to taste it, to smell it, to sift it. कि वो वहाँ पर जाता था, वो चाहता था कभी भी. And he still wanted to visit the places he had loved. कि वो जो जगह जिनसे वो मोहब्बत करता था उनको देखना चाहता था और वो यानी कि फसलें उगाना चाहता था, वो ज़मीन को देखना चाहता था, उस मिट्टी को उसको सूंघना चाहता था. ये उसकी अभी भी उसकी यानी कि फीलिंग्स, उसके जज्बात अब भी ऐसे थे. क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी डियर स्टूडेंट्स, Why had the old man planted a secret garden? कि जो बुरा आदमी होता है उसने अपने वहाँ पर जो यानी कि सीक्रेट गार्डन है, वो जो बाग है खुफिया, उसने यानी कि वहाँ पर यानी कि क्यों वहाँ पर यानी कि उगाया हुआ होता है, वहाँ पर क्यों उसने वो निकाशकारी की होती है.
Actually, the old man believed that vegetables grew on a new land had a better taste and flavor. कि बूढ़े आदमी का ये ख्याल था कि जो यानी कि सब्जियां हैं वो किसी जब एक नई ज़मीन में उगाई जाती हैं तो उनका जो जायका होता है वो बेहतर होता है, उनका जो फ्लेवर होता है वो बाकी जो ज़मीन पे जो उगाई जाती हैं यानी कि सब्जियां उनकी निस्बत बेहतर उसका जो टेस्ट होता है। इस वजह से उसने वो वहाँ पर अपना सीक्रेट जो गार्डन है वो वहाँ पर यानी कि उगाया था। दैट वाज द रीज़न। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स एंड दिस दैट्स ऑल. I think it's enough for today and see you in the next lecture. Next lecture में we're going to start our chapter number 3rd and I hope you got it and see you in the next lecture. Allah Hafiz.